سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی اہم ترین خبروں میں سب سے پہلے کرناٹک کے تعلقہ بیلتنگڑی کے سابق مقامی لیڈر مہیش شیٹی نے بی جے پی یوا مورچہ پروین نیتارو کے فیملی کو ان کے گھر پہنچ کر پرسہ دیا اور اس موقع پر کہا کہ ہندوتوا کے نام پر نفرت پھیلانے کا کام ان لوگوں نے شروع کیا تھا جس کا خمیازہ آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس ضلع میں پروین کے قتل سے صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سیاست کی رپورٹ کے مطابق مہیش نے فیملی کے ایک معمر رکن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا کئی مرتبہ کر چکے ہیں، سیاست میں نوجوانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن نوجوان سنتے نہیں ہیں۔ کرناٹک میں ترنگا بنانے والے ورکر سے ملاقات کے بعد فیس بک پر راہل گاندھی نے لکھا کہ آج کرناٹک کے ہبلی میں واقع کرناٹک کھادی گرام ادیوگ پہنچ کر ہمارا ترنگا بنانے والے تمام ورکر سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت کی ہر گھر ترنگا مہم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس تنظیم نے 52 سال تک ناگپور میں اپنے صدر دفتر پر ترنگا نہیں لہرایا، انہوں نے آج ہر گھر ترنگا مہم چلائی ہے۔ آج اسی تنظیم سے نکلے ہوئے لوگ ترنگے کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بتائیں کہ کھادی سے پرچم بنانے والوں کا روزگار کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ چین سے مشین کے ذریعے تیار جھنڈے درآمد کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ بتاتے چلیں کہ مودی حکومت نے آزادی کا امرت مہوتسو عنوان سے آزادی کے 75ویں سال میں ہر گھر ترنگا مہم چلانے کا اعلان کیا ہے، لیکن رپورٹس کے مطابق کرناٹک کھادی گرام ادیوگ کے تقریباً 45,000 ورکرز پر بے روزگاری کا بحران منڈلا رہا ہے۔ سی اے اے یعنی شہریت ترمیمی قانون نافذ کرنے پر گفتگو اور ہلچل دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں منگل کے روز مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شوویندو ادھیکاری کے شہریت ترمیم قانون نافذ کرنے کے مطالبے پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے یقین دہانی کرائی کہ کووڈ ویکسینیشن کی تیسری خوراک مکمل ہونے کے بعد پورے ملک میں سی اے اے نافذ کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ احتیاطی خوراک 9 ماہ میں مکمل ہو جائے گی اور اپریل سے اب تک 4 ماہ ہو چکے ہیں۔ مسٹر شاہ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے شدید احتجاج کے باوجود سی اے اے کو نافذ کیا جائے گا۔ سی اے اے 11 دسمبر 2019 کو پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا تھا۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے مطابق افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے ہندو، سکھ، بدھسٹ، جین، پارسی اور عیسائی غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی۔ اس میٹنگ کے بعد مسٹر ادھیکاری نے مزید بتایا کہ انہوں نے ٹی ایم سی کے 100 قائدین کی فہرست مسٹر شاہ کو دی ہے جن کے خلاف بدعنوانی پر کارروائی ہونی چاہیے۔ دہلی پولیس کی طرف سے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر امت پرساد نے کہا کہ شمال مشرقی دہلی کے فسادات وسیع تر سازش کا نتیجہ ہیں تاکہ مسلم قوم میں خوف کا احساس پیدا کر دیا جائے۔ یہی کام بابری مسجد، 3 طلاق، لنچنگ یعنی جبر و استبداد، سی اے اے، این آر سی، مسئلہ کشمیر کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ جسٹس سدھارتھ مردل اور جسٹس رجنیش بھٹناگر کی ڈویژن بینچ نے مزید دلائل کی سماعت کو منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ دراصل دسمبر 2019 کا تشدد اور فروری 2020 کے پرتشدد واقعات میں عمر خالد پر وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جن کا ان سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ پبلک پراسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ عمر خالد تشدد کے کسی مقام پر موجود تھے۔ ان کے خلاف صرف قیاس پر مبنی بیانات درج کرائے گئے ہیں۔ اس کے جواب میں جسٹس سدھارتھ نے کہا کہ سازش میں بنفس نفیس موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو افغانستان میں ایک ڈرون حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ الظواہری اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے کابل پہنچے تھے، تاہم اس حملے میں ان کے خاندان کا کوئی دیگر فرد زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں نے امریکی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم افغانستان اور دیگر جگہوں پر دہشت گردی کو ختم کرنے کے آپریشن جاری رکھیں گے، اور اگر آپ ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں تو امریکہ آپ کو ڈھونڈ کر مار دے گا۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد ظاہر ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ طالبان کے پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال 31 اگست کو افغانستان سے انخلا کے بعد سے یہ افغانستان میں القاعدہ پر پہلا امریکی حملہ ہے۔ ایمن الظواہری کو 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملوں کے منصوبہ سازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس حملے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ الظواہری کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ وہ مصر کے ایک خوشحال اور معروف گھرانے سے تھے، مگر کم عمری میں ہی ممنوعہ تنظیم اخوان المسلمین میں شامل ہو گئے تھے۔
1981 में मिस्र के सदर अनवर सादात के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने वाले सैकड़ों अफराद में शामिल थे, मगर इल्ज़ाम से बरी हो गए। अज़्ज़वाहिरी पेशे से डॉक्टर थे। 1980 के दहाई के अवाखिर में जब उसामा बिन लादेन ने गारों में पनाह ले रखी थी, उस वक्त अज़्ज़वाहिरी ने उनकी बीमारी का इलाज किया और इस तरह दोनों बहुत करीब आ गए। वो 2011 में अमरीकी फोर्सेस के हाथों उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अज़्ज़वाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाल ली। अमेरिका ने उनके सर पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। गुज़िश्ता बरसों में कई मरतबा उनकी हलाकत की अफवाहें भी उड़ी। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान है कि आसाम के कुछ मदारिस में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों, जुनूनियत और जिहाद की तरबियत की वजह से 750 मदारिस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत ने मजहबी तालीम फराहम करने वाले मदारिस को जारी भी रखा हुआ है। ताहम उन पर भी नज़र रखी गई है। जहाँ कहीं भी मदरसे के असातिज़ा के ख़िलाफ़ शिकायत आई है, वहाँ हुकूमत ने मुनासिब कार्रवाई की है और तलबा को पड़ोसी स्कूलों में जाने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकारी मदारिस नहीं हैं। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने सोशल मीडिया पर ASI का बयान शेयर किया है। मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव के त्यौहार के पेश नज़र 5 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक तमाम महफूज यादगारों या मकामात को सयाहों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। मुल्क में कुल 3692 तारीख़ी यादगारें और 50 अजाइब घर मौजूद हैं। दरअसल पूरा मुल्क 75वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर किसी से अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा DP लगाने की अपील भी की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU ने 20वीं सदी के 2 मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब को निसाब से खारिज करने के तनाज़े पर वजाहत पेश की है। यूनिवर्सिटी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि AMU ने एक कदम किसी गैर ज़रूरी तनाज़ा से बचने के लिए उठाया है। मालूम हुआ कि दाएँ बाजू के नज़रियात के 20 से ज़ायद उलमा ने मुबैना तौर पर इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा था, जिसमें इस्लामी स्कॉलर अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब के ख्यालात को काबिल एतराज़ करार दिया था। AMU के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि हमने एक कदम इस मामले पर तनाज़ा को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए उठाया है। उसे इल्मी आज़ादी पर तजावुज़ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वाज़ेह है कि अबुल आला मौदूदी एक हिंदुस्तानी इस्लामी स्कॉलर थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद पाकिस्तान हिजरत की। वो एक मुमताज़ मुस्लिम मजहबी तंजीम जमात इस्लामी के बानी भी थे। उनकी तसानीफ में तफ़हीमुल कुरान भी शामिल है। मौलाना मौदूदी ने 1926 में दारुल उलूम देवबंद से ग्रेजुएशन किया। वो मजहबी तकसीरियत के हामी थे। एक और इस्लामी स्कॉलर सैयद कुतुब, जिनके ख्यालात को AMU के निसाब से हटा दिया गया है, एक मिस्री और इस्लामी बुनियाद परस्त नज़रिए के हामी थे। वो इस्लामी इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम के अहम रुकन भी थे। उन्हें उस वक्त के मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर की मुखालिफत करने पर जेल भेज दिया गया था। कुतुब ने 1 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर तसनीफ़ फ़ी ज़िलालिल कुरान थी, जो तफसीर कुरान पर मबनी है। AMU के तर्जुमान पीरज़ादा ने कहा कि दोनों इस्लामी स्कॉलर्स के लिटरेचर यूनिवर्सिटी के निसाबी कोर्सेज़ का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें हटाने से पहले एकेडमिक काउंसिल में गौर व क़ौस के अमल से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। AMU शोबे इस्लामिक स्टडीज़ के साबिक सदर प्रोफेसर उबैदुल्लाह फ़हद का कहना है कि गुज़िश्ता 50 साल से मैं मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को पढ़ा रहा हूँ, उन पर PhD करवाई। मैंने कई किताबें उर्दू और अंग्रेज़ी में लिखी हैं। मुझे एक भी लाइन उनकी ऐसी नहीं मिली जिसमें दहशतगर्दी, तशद्दुद या ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों की हिमायत मिली हो। मौलाना शुरू से लेकर आखिर तक यही कहते रहे, वही तरीक़ा अपनाना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, पुरअमन जमहूरी आइनी तरीक़ा। गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम की एक्ट UAPA के तहत 2018 और 2022 के दरमियान कुल 4690 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से सिर्फ 149 लोग ही कसूरवार पाए गए हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 3 साल की मुद्दत के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई। गिरफ्तार किए गए 2488 अफराद 18 था 30 साल की उम्र के थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि 1850 अफराद 30 था 45 साल की उम्र के हैं।
कर्नाटक हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बाल मंदिरों से लापता 484 बच्चों में से 119 बच्चे अभी तक लापता हैं। अदालत ने इस सिलसिले में हल्फनामा पेश करने वाली हुकूमत को हिदायत दी कि वो लापता बच्चों का सुराग लगाने के लिए उठाए गए इक़दामात की वजाहत करें। हुकूमत के वकील ने लापता बच्चों के मामले में किए गए इक़दामात पर फॉलो अप रिपोर्ट पेश की है। हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट पेश किए हुए 4 माह गुजर चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करने की हिदायत के साथ इंक्वायरी मुलतवी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कहा कि फ्रांस ने एक खातून पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करके बैनुल अक़वामी हुकूक़ के माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। फ्रांस में इस खातून पर स्कार्फ ओढ़ने की बिना पर एक तरबियती कोर्स के दौरान स्कूल में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी ने कहा कि इस इक़दाम से शहरी और सियासी हकूक़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। मार्च में मंजूर शुदा माहिदा बुध के रोज़ खातून के वकील को भेजा गया। उनके वकील ने AFP को बताया कि यह एक अहम फैसला है जिससे ज़ाहिर होता है कि फ़्रांस को इंसानी हकूक़, ख़ास तौर पर मजहबी अक़लियतों और बिलख़ुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के हकूक़ के एहतराम के मामले में काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, मुलाज़ा करें कि इस हफ्ते की तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना रियासती वज़ीर और सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मस्जिद ख्वाजा महमूद को शहीद करने से कबल इलाके के तमाम मकानों को कुंडे लगा दिए गए और बरक़ी सरबराही मुनक़ते कर दी गई। पुलिस को तैनात करते हुए मस्जिद में मौजूदा मुक़द्दस कुरान और जाए नमाज़ों को हटाया नहीं गया और बुलडोज़रों से मस्जिद को शहीद कर दिया गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली भी खामोश तमाशाई बने रहे। पिछले 8 साल में 7 मसाजिद को शहीद किया गया। इस दौरान उनकी खामोशी आखिर क्या माना? मिस्टर महमूद अली को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर अमला दस्तयाब न होने का कहती है और अब 300 पुलिस कांस्टेबल को तैनात किया गया था। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस नोट में कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों के मुक़द्दस मजहबी मकामात के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर नाफिज किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता है कि वह बिला ताख़ीर यहाँ दोबारा मस्जिद की तामीर करे। इसी तरह से सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा मस्जिद को भी जल्द से जल्द तामीर किया जाए। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो हर सूरत में अमन व अमान को कायम रखें और मुश्तल होने से बचें। अगर आप मुश्तल हुए तो इसका फ़ायदा फ़िरका परस्त ताकतों को पहुँचेगा। शमसाबाद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद के मुतालिक मकामी मकीनों ने बताया कि इस मस्जिद में गुज़िश्ता 1.5 साल से नमाज पंजगाना अदा की जा रही थी और मस्जिद के करीब मुकीम विशाल सिंह ने मस्जिद की तामीर पर तनाज़ा करके मुख्तलिफ महकमा जात में शिकायत की और पार्क की अराज़ी पर मस्जिद तामीर किए जाने पर रोक लगाने का मुतालबा शुरू किया। मुकामी मुसलमानों ने इस पर वज़ीर दाखिला से मुलाकात करके मस्जिद की दीवार को मुनहदिम करने से वाकिफ़ करवाया था, जिस पर वज़ीर दाखिला ने उन्हें तयक़ीन दिया था कि दोबारा इस मस्जिद के मुतालिक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर साबिर अली की निगरानी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि इब्तिदा में मस्जिद को पार्क की ज़मीन पर तामीर किए जाने की शिकायत की गई और ये कहा गया था कि मज़कूरा इमारत GO 111 के इम्तनाई हुदूद में है, इसलिए उसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अब जबकि हुकूमत की जानिब से GO 111 को मनसूख कर दिया गया तो उस इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम शुब्बान, कांग्रेसी कायदीन उस्मान मोहम्मद खान, राशिद खान, मजलिसी कायदीन मोहम्मद मुबीन, कारपोरेटर शास्त्री पुरम, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा दीगर ने एहतजाज किया। सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि एहतजाजियों ने शहीद मस्जिद के मलबे के करीब नमाज ज़हर भी अदा की। मज़ीद ख़बरों के लिए सालार पढ़ें, सालार देखें, सालार सुनें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अशरफुल्लाह मोहम्मदी को इजाज़त दें।